Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. All right. So have you all joined? Mm, Okay, let's start. So we were doing ER model. ER model ka काफी कुछ we have discussed. We have discussed about entities, the relationship between the entities. We have also seen about the constraint, the mapping constraints, right? What are the mapping constraints? क्या होते हैं mapping constraints? Yes, class. What are the various mapping constraints that we have seen in your ER diagram? Or we can say the mapping, that's not a mapping constraint, basically the mapping cardinalities. ठीक है, देखो हमने 3 तरीके की relationships देखी थी. We have seen 3 kinds of relationship. That could be unary relationship. Unary कब होती है? Yes, what is unary relationship? निहारिका, क्या होती है unary relationship? हाँ जी, are you there in the class? Okay, so actually when there is only one entity that is participating in a relationship, that particular kind of relationship is called as a unary. Unary means one. And binary relationship ka example हमने देखा था when there are two entities that are participating, like a student and course, like your employee and department. Employee belongs to department, so it is a kind of your unary relationship. ठीक है? And in your unary, sorry, that is an example of binary relationship. जब हम बाइनरी रिलेशनशिप का बात करते हैं देन वील सी कि हाउ मेनी टाइम्स अ एंटिटी इज पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप दैट वी कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ एंटिटी इज पार्टिसिपेटिंग another entity that is being termed as cardinality. तो हमने cardinality देखी थी 1 to 1, 1 to many and many to many. ठीक है, 1 to 1 के एग्जाम्पल कौन देगा? What is 1 to 1 cardinality? हाँ जी, 1 to 1 का एग्जाम्पल क्या होगा? Like there is one male who is married to another female. तो यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है वन मेल और वन फीमेल का मैरिड टू में, दैट इज 1 to 1, है ना? आई यू ऑल अग्रीड? सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 to many का एग्जाम्पल क्या होगा? 1 to many, 1 to many कार्डिनलिटी का एग्जाम्पल होगा आपका लाइक देयर इज वन स्टूडेंट हु इज एनरोल्ड इन अ कोर्स, अ कोर्स हैज मेनी स्टूडेंट. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो, जस्ट लुक डाउन हियर in this relationship, student enrolled in course. Now in this relationship we can clearly see that there could be one to many relationship possible where one student is enrolled in a course and a course has many students. All right, so this is one to many. And many to many का अगर हम देखें तो many to many का example क्या होगा? Anji, what would be the example of many to many? We can say the same relationship. Many students enrolled in कोर्स. जैसे यहाँ पर S1 नाम का एक स्टूडेंट है, वो कोर्स इंग्लिश, वो डांस कोर्स में भी उसने ज्वाइन किया है और उसने म्यूजिक कोर्स में भी ज्वाइन किया है. तो यहाँ पर हो गया अ स्टूडेंट ज्वाइन मेनी कोर्सेज और अ कोर्स हैज मेनी स्टूडेंट्स. तो इज इट क्लियर टू यू? ये वाला Yes, एग्जाम्पल ma'am. जैसे एक ही स्टूडेंट रवि नाम का स्टूडेंट है, उसने डांस कोर्स भी ज्वाइन किया है, उसने पेंटिंग कोर्स भी ज्वाइन किया है, उसने म्यूजिक कोर्स भी ज्वाइन किया है. तो अ कोर्स, a student can join many courses.
और यहाँ पर जैसे म्यूजिक कोर्स है तो म्यूजिक कोर्स के पास भी काफी स्टूडेंट है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशनशिप विच वी कॉल्ड एज मेनी टू मेनी। ठीक है, तो ये हमने देखा था। नाउ वी हैव आल्सो सीन व्हाट इज टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी का मतलब क्या होता है? 3 एंटिटीज है जिसमें इन्वॉल्व हो। यस, लाइकवाइज व्हेन, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था आपका कि एक डॉक्टर है, एक मेडिसिन है और एक पेशेंट है। नाउ डॉक्टर, मेडिसिन और पेशेंट में देयर इज अ रिलेशनशिप, वी कैन से प्रिस्क्राइब्स। सो अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स टू अ पेशेंट। सो प्रिस्क्राइब नाम का एक हमने रिलेशनशिप बनाया। व्हेन 3 एंटिटीज आर पार्टिसिपेटिंग इन अ सेम रिलेशन, दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इज बीइंग कॉल्ड एज टर्नरी रिलेशनशिप। Now, when we are showing the relationship, when we are showing how many times the entity is participating in a relationship, तब वहां पर आपको participation भी दिखाना है कि participation total है कि partial है। अब total participation में I have shown you कि when we are showing the total participation in your ER diagram, तब उसमें हम double lines दिखाते हैं। What is the meaning of this double line? मैम यहाँ पे मतलब हो जाएगा, मतलब सारे स्टूडेंट किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डबल टोटल पार्टिसिपेशन, दैट ऑल द, देखो ये स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, दिस इज योर एंटिटी टाइप स्टूडेंट एंड ऑल द एंटिटीज। लेट्स सपोज देयर आर 10 एंटिटीज आर अवेलेबल। तो स्टूडेंट नाम 10 बच्चे हैं जो स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर स्टोर है। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनल मॉडल। या अगर हम ER मॉडल के बारे में बात करें तो हमारे पास अगर 10 स्टूडेंट एंटिटीज है, S1 S2 अप टू S10, तो 10 के 10 बच्चे किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज पार्शियल पार्टिसिपेशन। पार्शियल में जरूरी नहीं है कि सारे कोर्स में कोई ना कोई बच्चा हो। लेट्स सपोज हमारे पास 5 कोर्सेज है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। तो हमारे पास सिविल और इलेक्ट्रिकल 2 ऐसे कोर्सेज है जिसमें कोई भी बच्चे ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पार्शियल। दैट इज नॉट कंपल्सरी कि सारी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। पार्शियल को हम शो करते हैं विद अ सिंगल लाइन, डबल को हम शो करते हैं विद डबल लाइंस। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग इन टुडेज क्लास इज व्हाट इज वीक एंटिटी टाइप, or we called it as what is a weak entity. Many number of times this question has been asked, and moreover when जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखते हो ना, तो वीक एंटिटी से जरूर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज व्हाट इज अ वीक एंटिटी। अच्छा, अभी हमने सिर्फ एक बात की थी एंटिटी के बारे में, है ना। अभी तक जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज अ एंटिटी। आई हैव नॉट टेल यू ना व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, वीक एंटिटी क्या होता है ना, हमने इसके बारे में बात नहीं की है। तो सबसे पहले एंटिटी क्या होता है, व्हाट इज अ एंटिटी। हाँ जी, व्हाट इज अ एंटिटी। मैम एक रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस जिसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स लिंक दो। हाँ, जैसे इफ आई कॉल्ड यू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एक एंटिटी है ना। और एम्प्लॉय की अपनी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे एम्प्लॉय नंबर हो गया, उसका डिपार्टमेंट हो गया, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई, उसकी सैलरी हो गई। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैं एम्प्लॉय डिटेल नाम के रिलेशन में स्टोर कराऊंगी। सो एम्प्लॉय इज अ एंटिटी that can be described with the various properties. तो इसको मैं कौन सी कैटेगरी में डालूंगी, इसको मैं स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में डालूंगी, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब क्या है, एनी एंटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद इट, तो उसको मैं बोलती हूँ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक एंटिटी देन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होता है कि एनी एंटिटी that is not described by the help of its own attributes or that is completely dependent on the another entities, like जैसे मैंने employee का एग्जाम्पल दिया है ना। employee नाम की एक एंटिटी है। अब एक एंटिटी है डिपेंडेंट, जैसे एम्प्लॉय का डिपेंडेंट कौन है। या अगर मैं एग्जांपल दूं किसी बैंक में, जैसे एक ओनर होता है बैंक अकाउंट का ना, एक होता है आपका बैंक ओनर, सॉरी अकाउंट ओनर होता है, और एक होता है नॉमिनी, है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनी है।
नॉमिनी क्या होता है, सबको पता है ना ये इंफॉर्मेशन। नॉमिनी की एग्जिस्टेंस कब है, नॉमिनी इज कंप्लीटली, नॉमिनी भी एक एंटिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज है या उसकी जो आइडेंटिटी है वो तभी रेलेवेंट है जब अकाउंट ओनर एग्जिस्ट करेगा। अगर अकाउंट ओनर ही नहीं है तो उसकी नॉमिनी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यू अग्री विद मी और नॉट? Yes, ma'am. जैसे आपका कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का डिपेंडेंट, अगर एम्प्लॉय कॉलेज छोड़ के चला गया या कंपनी लीव कर दी तो उसके डिपेंडेंट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग द पर्टिकुलर एंटिटी एज अ वीक एंटिटी। सो अभी मैं बेसिक टर्म्स में आपको समझा रही हूँ कि वीक एंटिटी क्या होती है। सच एंटिटी दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब विद इट्स ओन एट्रीब्यूट्स एंड दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सम अदर एंटिटी इज बीइंग कॉल्ड एज योर वीक एंटिटी। क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक एंटिटी? यस मैम। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अब उसके डिपेंडेंट कौन कौन हो सकते हैं। कोई जैसे बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है तो उसमें हर एक एम्प्लॉय के डिपेंडेंट की डेटा स्टोर होता है। जैसे कोई एम्प्लॉय है उसका डिपेंडेंट उसकी वाइफ हो सकती है, कोई भी स्पाउस, ठीक है, उसके चिल्ड्रन हो सकते हैं। बट अगर उस एम्प्लॉय ने उस कंपनी को लीव कर दिया तो उसकी स्पाउस की इंफॉर्मेशन, उसके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, उसके स्पाउस की उसके चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन इज इररेलेवेंट टू द कंपनी। So such kind of entities that do not being described with its own properties, that is basically dependent on some other entities, such entity is being called as a weak entity. Now the next question is, how do you going to represent your weak entity in your ER diagram? आपको पता है आप entity को कैसे describe करते हो? With the help of a rectangular block. Agreed? आप एक rectangular block बनाते हो in order to describe an entity. Now when you want to describe a weak entity, you will draw a, क्या करोगे, डैश ब्लॉक, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक की जगह पे कैसे करोगे आप, डैश ब्लॉक ड्रॉ करोगे और उसकी जो रिलेशनशिप होती है ना, उस रिलेशनशिप को डबल लाइन ब्लॉक से करोगे। डैश ब्लॉक तो डिराइव के लिए करते हैं, डबल आप इसको, जैसे ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का एक एंटिटी है डिपेंडेंट, जो आपने अपने ईआर डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट किया विद डबल स्क्वायर्स, ठीक है। और जो रिलेशनशिप होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में, उस रिलेशनशिप को भी आप डबल डायमंड्स में इंक्लोज करते हो। दैट मीन इस तरीके की रिलेशनशिप को हम बुलाते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ठीक है। व्हाट इज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप? The relationship type which is used to identify the relationship between strong entity and your weak entity is being called as your identifying relationship, and it is represented with a double diamond. ठीक है, clear है what is a weak entity? Yes class, is it clear to you what is weak entity? Yes ma'am. Now there is sometimes question being asked that what is the difference between strong entity and weak entity. Before starting, let me ask from you कि what you have understood. कौन बताएगा? Aman Gupta, what is the difference between weak entity and strong entity? Hanji, you there in the class? क्या मतलब होता है वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का? क्या शेयर हो रहा है आपको? हाँ जी, अभी मैंने बताया ना। Are you there in the class, Aman Gupta? देखो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एंटिटी इन द स्कीमा, ठीक है। जब हम बात करते हैं ईआर मॉडल की ना, तो हम स्कीमा या रिलेशन टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। रिलेशन टर्म्स भी हम तब यूज करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनल टाइप मॉडल,
ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज अबाउट रिलेशनल मॉडल। जो हम एसक्यूएल में काम कर रहे हैं ना, वी आर वर्किंग ऑन टेबल्स, है ना, उसके अंदर हम जो टेबल्स होती है उसको हम रिलेशनल मॉडल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज अनदर डेटा मॉडल विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेटा मॉडल। जैसे ईआर मॉडल पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके से रिलेशनल मॉडल से भी काफी क्वेश्चंस दे में पुट अप। तो ईआर मॉडल का मैंने आपको काफी कुछ बताया है। देन वी हैव स्टार्टेड अबाउट वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी का डिफरेंस वी आर लुकिंग। तो वीक एंटिटी मैंने बताया which is dependent on some other entity, and strong entity that is not dependent on any of the entity in the schema, and that has its own primary key. Now what is the meaning of primary key here? Primary key काफी important है, and I want to devote few minutes onto this in order to discuss about primary key. तो प्राइमरी की क्या होता है बताओ। चलो मैं आपकी बुक ओपन कर रही हूँ, बुक से भी हम देख लेते हैं कि क्या है उसमें। हाँ जी, हमने की एट्रीब्यूट पढ़ा था। व्हाट इज अ की एट्रीब्यूट, पहले तो ये बताओ, उसके बाद आई विल टेल यू अबाउट प्राइमरी। मैम जो एट्रीब्यूट यूनिक हो। हाँ, सो इन अ एंटिटी, जैसे स्टूडेंट नाम के एंटिटी सेट में हमारे पास 10 एंटिटीज है, S1 S2 अप टू S10। so every student entity, that is S2 या S3 S5, the key attribute which help us to uniquely identify each different entity from other entities is being called as a primary attribute. जैसे let me show you the example of it, ठीक है। ये क्लिक नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्या एक मिनट। Yes, so just wait a second. Document ये visible हो गया। This is your book course. This is all visible to you? Yes. अभी हमने बात की ER मॉडल की, और सॉरी अभी हमने बात की है वीक एंटिटी की। तो वीक एंटिटी देखो यहाँ पर how they have described a weak entity, and we are talking about primary keys, right? So these are the two things we are just seeing from here. देखो ये कीज, सबसे पहले ना हमें प्राइमरी की देखना है कि क्या होता है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की इज बेसिकली अ की which help us to uniquely identify the entity. So basic simple definition हम बात करें। So any key which uniquely identify the entity or no two entities in a entity set are allowed to have exactly the same value of all attributes. ठीक है, तो जब हम अपने डेटाबेस में अगर हम SQL की बात करें, तो जैसे हमने क्रिएट टेबल की थी ना, जैसे हमने लिखा था क्रिएट टेबल, लेट्स सपोज वी आर क्रिएटिंग अ टेबल एम्प्लॉय, राइट, एंड वी आर डूइंग लाइक दिस एम्प्लॉय आईडी, उसका varchar लिख रहे थे, then I was writing department, again it is of varchar type, and the other attribute is employee name, ठीक है, तो ये भी varchar हमने रख लिया। Now if I want to say कि जो इसका employee ID है that should be primary key, that should be the primary attribute which help me to identify each entity, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, I will simply write the name of the column, employee ID is the name of the column, varchar is the type, 10 is the size, followed by one constraint जिसको मैं बोलती हूँ primary, यहाँ पे क्या लिख दूंगी प्राइमरी की। तो जब आप इसका डिस्क्राइब एम्प्लॉय लिखोगे ना अपने उसमें, व्हेन यू राइट हियर, तो जब आप यहाँ पे लिखोगे DSC एम्प्लॉय, तो आपके पास, आपको ध्यान है कि हमारा जो स्ट्रक्चर आ रहा था वहां पर नल नल लिखा आ रहा था, तो जब हम जो की कंस्ट्रेंट था उसमें, तो वहां पर एम्प्लॉय आईडी के सामने लिखा आ जाएगा प्राइमरी की, और प्राइमरी की का अपना एक एंटिटी कंस्ट्रेंट होता है। अभी वी हैव टू स्टडी अबाउट वेरियस एंटिटी कंस्ट्रेंट्स आल्सो, तो उसका एक अपना एंटिटी, अपना कंस्ट्रेंट होता है कि प्राइमरी की, अगर आपने किसी भी एट्रीब्यूट को
डेजिग्नेट किया है कि दिस एट्रीब्यूट विल बी द प्राइमरी की, देन इट्स वैल्यू कैन नॉट बी नल। तो इस कंस्ट्रेंट को हम बोलते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट। What is a not null constraint? Not null constraint always क्या स्पेलिंग है इसकी? Not null constraint always specify that the primary key values cannot be null. So आपको पढ़ना है about we have to understand about the various keys. तो सबसे पहले प्राइमरी की क्या होती है, व्हाट इज अ सुपर की, व्हाट इज अ कैंडिडेट की, ये हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। द कांसेप्ट्स ऑफ प्राइमरी की, कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की क्या होती है। आई विल बी टेलिंग यू, आई विल बी टेकिंग अ स्पेशल लेक्चर जिसमें आई विल बी गिविंग यू न्यूमरस एग्जांपल्स अबाउट वेरियस कीज। तो जब हम वो पढ़ लेंगे ना, रिलेशनल मॉडल भी पढ़ लेंगे, तब हम कीज के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बट बीच बीच में जैसे आएंगी तो हम एनकाउंटर करते जाएंगे। प्राइमरी की जैसे आज हमने देखा, तो सबको क्लियर है प्राइमरी की क्या होता है। जब भी आप कोई डेटाबेस डिजाइन करते हो, यू हैव टू टेल कि विच एट्रीब्यूट इज यू आर यूजिंग एज अ प्राइमरी की। और जो डेटाबेस डिजाइनर्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉय टेबल के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर भी एक एट्रीब्यूट अगर है, तो आपको पता है कि कॉन्टैक्ट नंबर भी यूनिक होता है, बट अमंग द कॉन्टैक्ट नंबर एंड एम्प्लॉय आईडी, विच एट्रीब्यूट यू विल सेट एज योर प्राइमरी की? कौन से एट्रीब्यूट को प्राइमरी की तरह सेट करोगे? दिस इज ऑल डिपेंडेंट। ये आपका जो डीबीए होता है ना, जो डिजाइन करता है डेटाबेस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो मोस्टली जो वाइज डिसीजन होता है वो यही होता है कि वो एम्प्लॉय आईडी को एज अ प्राइमरी की सेट करे, या जैसे अगर किसी का आधार इंफॉर्मेशन भी है, आधार नंबर भी हो सकता है, बट ऑल दीज थिंग्स कैन बी नल। और प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। दैट इज अ नॉट नल कंस्ट्रेंट विच इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन प्राइमरी की। सो आपको ऐसे एट्रीब्यूट को प्राइमरी की सेट करना होता है जिसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होती है। आपको पता है, जैसे ही कोई एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, द फर्स्ट थिंग दैट इज इशूड टू एम्प्लॉय इज अ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, विच कैन नॉट बी नल। कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर, देयर मे बी सम वैलिड रीजन जिसकी वजह से ये वैल्यूज नल हो सकती है। समझ में आ रहा है व्हाट आई वांट टू कन्वे? यस क्लास, आई कांट सी योर रिएक्शन, सो यस मैम। बताते जाओ कि समझ में आ रहा है ना कि हमें किसको प्राइमरी की सेट करना है। यस मैम। नाउ व्हाट इज अ कैंडिडेट की? पता है कैंडिडेट की? आप देखो, जैसे अभी मैंने बात की ना, कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकता है, आधार नंबर भी हो सकता है। तो कैंडिडेट की क्या होती है? जैसे मैं आई एम टेलिंग यू अबाउट द अदर टाइप ऑफ की, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की कुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स or the collection of attributes that can together be called as your candidate key. Candidate key also help us to uniquely identify the each different entity from other entities, and the candidate key can be null. One thing is with candidate key की वैल्यू null हो सकती है, और but primary key की वैल्यू null नहीं हो सकती। कैंडिडेट की भी हमें हेल्प करती है to identify your entities from different entities. And yes, primary key is a set of candidate key, but a candidate key is not a set of primary key. ये लाइन समझ में आई कि जो मैंने बोला अभी? I just have said कि primary key, what do you mean by this? Primary key is a is not a, you can say subset. हाँ जी, what do you mean by this statement? Candidate key is not a subset of primary key.
देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जो एलिजिबल, जैसे 10 एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते हैं, है ना, तो उसको जैसे उसी तरीके से समझो, तो कैंडिडेट की एक से ज्यादा हो सकती है, और कैंडिडेट की ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई योर एंटिटीज, जैसे हमने बोला कॉन्टैक्ट नंबर, हमने बोला आधार नंबर, तो ये कैंडिडेट की हो सकती है, ठीक है। और एम्प्लॉय आईडी भी कैंडिडेट की है, प्राइमरी की उसमें से एक होगी, विच इज हमने बोल दिया जैसे एम्प्लॉय आईडी इज अ प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल बट कैंडिडेट की कैन बी नल, ठीक है। अभी अगर आपको कैंडिडेट की ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, आई विल बी टेलिंग यू अगेन इन डिटेल, बट अभी जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया कि कैंडिडेट की क्या होता है, बट आवर मेजर इंटेंशन इज टू नो व्हाट इज अ प्राइमरी की। सबको प्राइमरी की क्लियर है क्या होता है? Yes, ma'am. अच्छा, आपकी जो प्राइमरी की है कुड बी कंपोजिट ऑल्सो, ऐसा नहीं कि खाली एक सिंगल की ही आपकी प्राइमरी की होगी। जैसे अगर कोर्स नाम की आपका एक स्कीमा है, ठीक है, लेट्स सपोज आपका एक स्कीमा है कोर्स नाम का, उसमें कोर्स नंबर और कोर्स नेम टुगेदर, दीज आर द टू एट्रीब्यूट्स व्हिच टुगेदर हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द एंटिटी, तो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी की। और प्राइमरी की आप पहले बताओगे, जब जब भी आप कोई डिजाइन करते हो तो यू हैव टू स्पेसिफाई कि which attribute is you are using as your प्राइमरी की। एंड प्राइमरी की ऑलवेज ईआर डायग्राम में उसको कैसे शो करोगे? विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइन, ठीक है। आप जैसे की एट्रीब्यूट के नीचे हमने अंडरलाइन किया था ना, वैसे ही हम प्राइमरी की के नीचे अंडरलाइन करते हैं। तो लेट्स प्रोसीड अहेड। हमने प्राइमरी की के बारे में देख लिया, यहाँ पे एक स्मॉल डायग्राम दिया हुआ है, वो भी देख लो। जैसे यहाँ देखो क्लासरूम है, सबको दिख रहा है? क्लासरूम, डिपार्टमेंट, कोर्स, इंस्ट्रक्टर और सेक्शन, ये सब बेसिकली आपका एक यूनिवर्सिटी नाम के डेटाबेस की एंटिटीज है, ठीक है। दीज आर द एंटिटीज ऑफ योर यूनिवर्सिटी डेटाबेस, या कोई भी डेटाबेस है, तो उसमें ये देखो बिल्डिंग और रूम नंबर, इन दोनों के नीचे अंडरलाइन है। तो बिल्डिंग और रूम नंबर टुगेदर अगर हमें इनकी वैल्यू पता होगी, देन वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी। तो बिल्डिंग और रूम नंबर को हम क्या बुला रहे हैं? प्राइमरी की। इन दोनों के नीचे अंडरलाइन है। सिमिलरली डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नेम एक ऐसा है जिसको हम डेजिग्नेट कर रहे हैं कि दिस इज द प्राइमरी की। इफ वी नो इट्स वैल्यू, आई कैन आइडेंटिफाई द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ द स्कीमा डिपार्टमेंट। ये एक क्वेश्चन होता है जिसमें अभी ना जब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, जैसे हमारा थोड़ा सा सिलेबस हो जाए ना, विल बी सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके गेट में या एनटीए नेट में पूछे हुए हैं। विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो उसमें आपको ऐसे टेबल, एक ऐसा सिनेरियो पूछ लेते हैं कि अगर आपको प्राइमरी की वैल्यू ये है तो बाकी वैल्यूज आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो आपको पता है कि जब प्राइमरी की वैल्यू पता होती है, तो आप जैसे आपको डिपार्टमेंट नेम पता है फॉर दिस डिपार्टमेंट स्कीमा, तो यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड बजट। अगर आपको कोर्स आईडी पता है तो यू कैन डिटरमाइन फॉर द पर्टिकुलर एंटिटी कोर्स, यू कैन डिटरमाइन द टाइटल एंड क्रेडिट्स। तो प्राइमरी की ऑलवेज हेल्प अस टू determine the remaining attributes also if you know the primary key value, ठीक है। सो प्राइमरी की को हम ईआर डायग्राम में हमेशा डेजिग्नेट करते हैं विद अ स्लीपिंग लाइन, मतलब उसको अंडरलाइन करते हैं। और अब अगर हम एक डायग्राम की बात करें, व्हाट इज अ बेसिक डायग्राम? डायग्राम हम अगर नेक्स्ट थिंग जो हमें पढ़नी है ना ईआर मॉडल में, उसमें आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक सिनेरियो दे देंगे, तो आपको उसका ईआर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आई विल बी गिविंग यू अ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, जो आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, उसका आपको ईआर डायग्राम ड्रॉ करना है। फॉर बिफोर देन दैट आई just telling you कि एक ER डायग्राम में what are the various notations that you gonna use, ठीक है। काफी कुछ हम देख चुके हैं, बट स्टिल इसको एक समराइज वे में बताओ। आपको पता है रेक्टेंगल्स आप क्यों यूज करते हो? इन ऑर्डर टू शो अबाउट अ एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। तो रेक्टेंगल्स आर ऑलवेज बीन यूज्ड जब आपको एक्सप्लेन करना हो कि ये एक एंटिटी है या स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। वीक एंटिटी को आप हमेशा बताते हो डबल रेक्टेंगल से, और उसके बीच का रिलेशन जो आप बताते हो वो वीक रिलेशनशिप के साथ बताते हो, जिसको हम ऑल्सो वी कॉल इट एज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप।
and simple relationship is being described with help of this diagram. Attributes को आप define करते हो with the help of this oval, और multi-valued attributes जैसे आपका phone number है, या अगर कोई कोर्स है, अगर किसी स्टूडेंट ने मल्टीपल कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, तो कोर्स अगर आप कोई एट्रीब्यूट बता रहे हो इंस्टेड ऑफ एंटिटी सेपरेटली, तो उसको आप डेजिग्नेट करोगे, उसको आप दिखाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस डबल ओवल, ठीक है। दीज आर द वेरियस सिंबल। प्राइमरी की का हमेशा आप यूज करोगे, लाइंस आप यूज करोगे इन ऑर्डर टू ज्वाइन टू एंटिटीज टुगेदर, या किसी रिलेशनशिप और एंटिटी को आपस में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी नाम का जो ER मॉडल है ना, this has been asked many times. If you see the papers, let me show you some of the papers first. Just hang on. एक मिनट। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना असाइनमेंट इशू करना चाहती हूँ। तो जो फर्स्ट असाइनमेंट है, और आई वांट टू कंडक्ट योर MCQ फर्स्ट ऑल्सो। तो अभी हमारा काफी कुछ बचता है, काफी कुछ तो नहीं बचता है, थोड़ा बहुत ही बचता है। तो बताओ मैं कब लूँ? यस, Yes, ma'am. कब लूँ? आज तो असाइनमेंट मैं आपको इशू कर दूंगी, पहला असाइनमेंट, ठीक है। और उसको आप मुझे सबमिट करोगे बाय 8 अक्टूबर, ठीक है। अच्छा, ये देखो पहले ही क्वेश्चन मिल गया मुझे। लेट मी जस्ट शेयर दिस पेपर विद यू। और यही आपका होमवर्क होगा आज की क्लास में। जस्ट सी दिस सेक्शन, दिस पेपर इज शेयर टू यू ऑल। Construct a ER diagram for a car insurance company whose customers own one or more cars each, and each car has associated with it 0 to any number of recorded accidents. Can you all see that? ये सबको दिख रहा है? Yes, अब ma'am. इसमें आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है कि आप इसमें कितनी एंटिटीज लोगे, ठीक है। हर ER डायग्राम दूसरे ER डायग्राम से अलग हो सकता है, बट जो जो चीजें इसमें इन्होंने मेंशन की है, that you have to show in your ER diagram. अब यहाँ पर आप obviously एक कस्टमर नाम की एंटिटी बनाओगे, ठीक है। एक एंटिटी बनाओगे कार नाम की, ठीक है। और कार का आपको एक्सीडेंट्स भी रिकॉर्ड करने हैं कि एक कार के कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो रिलेशनशिप एक बनेगी एक्सीडेंट्स नाम की, ठीक है। एक इंश्योरेंस भी बनेगा रिलेशनशिप की, कार का इंश्योरेंस भी होता है, मतलब कि एक कस्टमर एक कार का इंश्योरेंस कराता है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यू हैव टू यूज दिस सिनेरियो, और इसको समझाना है आपने। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और एक देखो, देयर इज अ क्वेश्चन आज डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की। तो अभी हमने बात की है अबाउट ओनली अबाउट प्राइमरी की। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, और ये हमेशा आपको समझाना है विद हेल्प ऑफ डायग्राम्स। विदाउट डायग्राम्स तो सॉरी, विद हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल कि कोई आपने एक रिलेशन बता दिया, कोई स्कीमा ले लिया, उसमें आपने दिखाया कि उसके अंदर कैंडिडेट की कौन सी है, प्राइमरी की कौन सी है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन, सब फोटो खींच लो इसकी, जस्ट टेक आउट अ पिक्चर एंड you have to do this ER diagram. You have to solve this question and send me the answer in my WhatsApp. ठीक है, सबको WhatsApp करना है. ले लिया पिक्चर? Yes, ma'am. सबने ले लिया? Yes, is it done? Yes, ma'am. ठीक है, just see the next page. ये देखो, what do you mean by a data model? Explain the various types. एक चीज I want to say कि these are the papers of MDU, ठीक है, और what is the difference in the papers of MDU and YMCA is YMCA never ask long questions. This is my experience says कि जितने भी papers मैंने देखे हैं उसमें they never ask such kind of direct questions. Their questions are always indirect and more meaningful. But अगर आप long questions prepare करोगे तो उसमें से short questions या indirect questions अपने आप you can able to answer अगर आपका long prepare है, ठीक है. So data models or various types of data models that you have to learn and that you have to prepare. DBMS and file system में मैंने आपको पहले ही बताया था, these are the questions that has been asked. What is the significant difference between DBMS and file system? ठीक है, बाकी तो we are going to do this. आगे scroll क्यों नहीं हो रहा है? एक मेरे पास YMCA का पेपर था, just hang on, मैं एक देखती हूँ. हाँ जी, this is shared to you. कुछ दिख रहा है? ये see the first question में they have asked you about data, relational model. Relational model will be studying, ठीक है, और data के बारे में पूछा है और that too in 5 marks. So this is all up to you कि आप उसके बारे में क्या क्या बताते हो, ठीक है. You have studied a lot about data. See, this is a question, give a brief idea about hierarchical model. ठीक है, तो आपको सारे डेटा मॉडल्स प्रिपेयर करने हैं. एक ये क्वेश्चन भी बहुत बार आई हैव सीन इन पेपर्स. व्हाट आर द वेरियस डिजाइन इश्यूज दैट वी सी व्हाइल वी कंस्ट्रक्ट ER डायग्राम. तो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू. ये असाइनमेंट के अलावा मैं 1-2 क्वेश्चन दे रही हूँ आज के क्लास में कि व्हाट आर द वेरियस डिजाइन इश्यूज, कि जब आप एक ER डायग्राम को डिजाइन करते हो तो कौन कौन से इश्यूज आते हैं. पहला इशू मैं आपको बता देती हूँ कि लेट्स सपोज आई जस्ट डिस्कस अ सिनेरियो. दिस क्वेश्चन इज दिस topic is available in your 4th chapter number 7. You can refer from there. पहला डिजाइन इशू क्या होता है कि sometime जब आप कोई भी 2 एंटिटीज है और रिलेशनशिप है, एक कभी भी इशू आता है कि क्या हम इसको एक रिलेशनशिप की तरह रिप्रेजेंट करें कि एंटिटी की तरह रिप्रेजेंट करें. लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसका फोन नंबर एक एंटिटी भी हो सकता है और इट कुड बी एट्रीब्यूट ऑल्सो. तो पहला डिजाइन इशू हमारे दिमाग में आता है कि whether we consider this particular thing as an attribute